Bismillahirrahmanirrahim. In the last class, I asked you for some homework. You have to upload the notes, and I hope you have uploaded those. And then I asked you that you are supposed to upload the data structure diagram of your class project, and ERD of your class project. Remember? Yes, sir. याद है? चलो ठीक हो गया. और उसके बाद फिर ये था कि you had to study ER, Win, Visio और any other tools जो आपको पसंद हो या अभी नहीं कर सके. सर अभी टूल इस्तेमाल नहीं किए. अच्छा ठीक है लेकिन बस अब है क्योंकि अभी हमने शुरू कर देना है. अच्छा, today we are going to start our lecture with the new concept, that is 22nd March 2021, and now we are going to start the simple versus composite attribute, right? So give it a heading in your notebooks क्योंकि आपने अपने लेक्चर जमा करवाने हैं, ठीक है, कि आपने लिखा था, पढ़ा था या नहीं. So write down simple versus composite attribute. And I start my presentation from here. Bismillahirrahmanirrahim. So here we are. और जहां पर समझना है वहां रुक जाएंगे और मैं दोबारा ड्रॉ भी करूंगा, ठीक है. So today we are going to study the different types of attributes, repeating group and solution for repeating group. So now let's start with the simple versus composite attribute. First of all, try to understand what is a simple attribute. An attribute that cannot be broken down into further simpler attributes is known as simple attribute, not simple attribute, right? For example, city and country. अब ये देखिए, कोई सिटीजन है, उसका कोई यहाँ पे CNIC था, CNIC नंबर होगा, कोई नेम होगा, कोई सिटी होगा, कोई कंट्री होगा. So now city name cannot be broken down, country cannot be broken down, name can be broken down, but in this case my user did not ask me to break it down. अब ये सोचना है कि सर आप ब्रेक डाउन से या ब्रोकन डाउन से क्या मतलब लेना चाह रहे थे. तो जरा ये देखिए, sometime my users ask me कि I don't want to have the name like this. तो मैंने कहा फिर उसने, he says I want to have the first name and the last name. So he want to in fact make an attribute name that is composed of two attributes, simpler attributes, that is the first name and the last name. So name is composed of first name and last name. So we model it like this, that we make the main attribute, that is name. This attribute is composite attribute, and it is composed of two more further simpler attributes. One is first name and the other is last name. So if I give you the definition, composite attribute, an attribute that cannot be broken down into further simple attributes is known as simple. ये simple है, sorry यहाँ पे typo है, simple attribute, right? For example, name and address. आप देखिए, name has been broken down into first name and the last name. And if here would have been something like address, so how can we, if my user says I do not want to have the address in a simple one field, I want to have it broken down into simpler fields, so which fields those can be? और एक परमानेंट एड्रेस और एक सर रेजिडेंट, मतलब सर जिससे कि नहीं वो अलग है. नहीं वो अलग है. इसी को सिंपल एड्रेस के एट्रीब्यूट को तकसीम करके सोचें. सर सिटी, टाउन, जिप कोड. तुम लोग देखो, जब अब तो खत का जमाना नहीं रहा है, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है हम शुरू कैसे करते थे. अपने घर का पता आप कैसे लिखते हैं जब आप किसी फॉर्म पे एंटर करते हैं? तो शनाख्ती कार्ड पे आपका एड्रेस कैसे लिखा होता है? सर घर का नंबर सबसे पहले होता है. सबसे पहले मकान का नंबर. सो वन फील्ड वुड बी मकान नंबर, दूसरा गली या मोहल्ला, तीसरा आपका सेक्टर, चौथा आपका सिटी. यस और नो? यस सर. Yes, so that means if my user is asking me to divide name into further attributes, it will no more be a simple attribute, it will become the composite attribute. Getting me or not?
Yes, sir. Yes, sir. And if my user says, no, I don't want to have my name attribute divided into further attributes, then this name will be known as the simple attribute. That means we are not supposed to divide it. Got me or not? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So now I will just simply show you some diagrams so that you may get better idea. So now check. Name is composite attribute. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. My user asked me, I want to have first name, middle name, and the last name. So I made this name as a composite, look, composite attribute, an attribute that can be broken down. Fine. Then he said, don't want to address in a single field. I want to have the separate fields for the address. So I wrote down number, that is house number, office number, shop number, whatever, street and gully, sector or mohalla, and city. So I divided this attribute. So again, address is also the composite attribute. So address and name are, sorry, which attributes? Name and address. Name and address are composite attributes. Composite. But check, country name cannot be divided, or can it be? क्या हम कंट्री के नाम को तकसीम कर सकते हैं? No, sir. No, sir. No, सर sir. वो एक ही रहेगा. So in that case, country name is an attribute that cannot be broken down, or we did not break it down. So it is known as simple attribute. Simple attribute. Got me or not? Yes, sir. Yes, sir. Got it. इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको नोट्स में ऐड कर लीजिएगा तस्वीर बनाते हुए. मैं वो वाला भी आपको मौका दूंगा बनाने का. तो आप जरा वापस आइए और जल्दी से अपने नोट्स के अंदर जस्ट राइट डाउन दिस सिंपल एट्रीब्यूट. मैं इसको पहले आपके सामने खोलूं, आप इसको बना लें, और फिर मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगा कंपोजिट. बेटा बस ख्याल ये रखना है, if my user is saying do not break name into simpler attributes, then name itself will become the simple attribute. But if my user says no, I want the name to be broken down into first name and the last name, then this name attribute will be known as Composite attribute. composite attribute. ठीक है. तो अब एक काम कीजिए, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लें 1 मिनट के, इसको लिख लें पहले, फिर नीचे ये एग्जाम्पल बना लीजिए जल्दी से. आपने अपने नोट्स जमा करवाने, इसलिए कोई गलती सुस्ती मत कीजिएगा. 2 घंटे के अंदर अपलोड होने चाहिए. कितने लोगों ने बना लिया? सब बना रहे हो? यस सर. ओके ओके, जल्दी जल्दी बनाओ मेरा बेटा. ये कौन सी जगह से ट्रेन गुजरी है इस वक्त? सर मेरे घर के पीछे रेलवे. कहाँ से, किस जगह से, किस जगह से? सर डोगचराग थी. अच्छा, ये कहाँ, ये ट्रैक है करीब तुम्हारे? यस सर, हमारे घर के पीछे रेलवे लाइन है. बिल्कुल. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये जब गुजरती है तो घर हिलता है? यस सर. लेकिन या आप सर आदत हो गई है? आदत हो गई सर, अब पता ही नहीं चलता. हाँ हाँ, क्योंकि मैं ही सोचता हूँ कि इतने कोई जग शग गिरते गिरा? नहीं, जग शग नहीं गिरते, लेकिन आवाज ज्यादा होती है. देखो इसको फिक्र पड़ गई, ये चीजें तो नहीं गिरती. चलो लिखो लिखो, जल्दी करो जल्दी करो. मुझे इसकी ट्रेन की आवाज आई थी इसलिए मैंने पूछा. जल्दी से लिखो मेरा बेटा. ऐसा ना हो बिलाल सोया हो. क्यों बिलाल क्यों सोया हुआ हो?
वो जवाब दे रहा है उसका सवाल का। ये सोता सर इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो काम करो काम करो, गप्पे कम लगाओ लड़कों। शाबाश शाबाश। इज इट डन? यस सर। राइट, अब ये देखो नेक्स्ट वाला देखो, ये राइट डाउन दिस डेफिनेशन, लेकिन मैं अभी तस्वीर दूसरी आपको दिखाता हूँ। ये भी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतनी बना लो, लेकिन मैं आगे कुछ और यहाँ पे ना एड्रेस भी ऐड करवाना चाहूंगा, जगह छोड़ देना। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। इधर मैंने कैन बी लिखा है, जिसको तोड़ा जा सके, जिसको हम तोड़ दें। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। दैट कैन बी बुक इज नोन एज कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। कॉपी पेस्ट जो है ना, ये टीचर्स को भी कभी कभी, सॉरी। चलो सर डायग्राम यही बनानी है? ये वाली अभी आधी है, तुमने लिख लिया सबने? यस सर। और सर अभी लिख रहे हैं। लिख ले जल्दी कर के। ये तस्वीर नहीं बनाना, ठीक है, मैं ताकि तुम्हें वहीं ले जाऊं, ताकि तुम्हें वो बेहतर तस्वीर मिल जाए, जिसमें एक के बजाय दो एग्जांपल्स हो। ओके सर। अब तेज लिखने की आदत डालो बेटा, क्योंकि ना ये तो फिर इस तरह से हम घंटों बैठे रहा करेंगे। लिख लिया सर। सर लिख वो लिया? अच्छा सर कुछ ठीक हो, स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो सर अलाउ नहीं कर रहे सर, वो मैसेज कर रहे हैं क्लास के कहना लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा तो कर थोड़ा रहे हैं। लेट होगी। उन्हें कहना उस्ताद जी वक्त पर आओ, कहना चलो अब आओ, मेरे सामने तो नजर नहीं आ रहा है कोई भी, उन्हें कहो कि आओ जरा। उन्हें टेक्स्ट कर दो कि सर कह रहे हैं फौरन ज्वाइन करो, इसलिए मैं कहता हूँ बैठा रहा हूँ इतनी देर, 10-12 मिनट के, यार चलो ये आते रहे। एनी हाउ आप लोग तब तक ये लो यार। अब ये देखो मेरा बेटा, इधर गौर करना, मैं इधर टिक लगा दूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यार हो क्या रहा है। एक ये वाला देखो जरा, इस डायग्राम को पूरा बनाने के बजाय ये, और एक ये जो तुम्हारे पास एड्रेस वाला है, ये दो तुम बना लो, ताकि तुम्हें पता हो कि यार, और यहाँ पे तुम, यार ये जो गड़बड़ है ना मेरी से हो गई थी उस वक्त, क्योंकि हम स्टूडेंट की मिसाल पे चल रहे थे, मैं चेंज करना चाह रहा था। तो इसको नाउ यू राइट डाउन CNIC, ठीक है, बेशक रेड शर्ट तो भी हो गया। इसको आप बनाओ और मैं इनको इन कर लूं। कौन लोग हैं ये? एडमिट, फरहान, व्यू ऑल, ये सारे आ गए। चलो अब बेटा जल्दी से इसको भी बना लो। ये कॉम्पोजिट की मैं जान के बनवा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि यार ये देखो नेम और एड्रेस दोनों थे। सर इसमें कंट्री कोड वाली भी बनानी है, कंट्री नेम वाली भी? ना बनाओ, क्योंकि ये तो सिंपल के लिए मैंने बनाई थी ना, कंट्री कोड हम नहीं तोड़ते। 092 है तो 092 रहेगा। अगर मेलिंग जो हमारा वो कहलाता है कोड 44,000 या कुछ भी पोस्टल कोड जिसको कहते हैं, वो नहीं टूटता। तो ये सिर्फ मिसाल के लिए बनाया है, अगर चाहो तो बनाओ, लेकिन ये कॉम्पोजिट की मिसाल, हेयर वी हैव द नेम एंड द एड्रेस, ये दो हैं जो कि बिल्कुल सही है इसमें। कंट्री नेम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है इस वक्त, या कंट्री कोड लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ ये तीन बनाओ, CNIC, नेम एंड एड्रेस, ताकि पता चल जाए कि ये टूट सकते हैं, हमने तोड़े हैं। हो गया सर। हो गया सर। सर अभी थोड़ा सर अब जरा यहाँ पर लड़के तू सुस्त है, देख बाकियों के साथ साथ चल यार, ये थोड़ी सी ज्यादती है मेरे साथ।
ये आज की क्लास की बात नहीं है ना, हमेशा तो पीछे ही रहता है। थोड़ा सा तेज मेरा बच्चा, जब अक्सरियत कर ले तो उस वक्त तुम भी कर चुके हुआ करो। हो गया सर। चलो अब देखो बच्चा लोग जरा सारे वापस आओ एंड नाउ चेक वी हैव स्टडीड सो फार नथिंग। जो नए बच्चे आए हैं बाद में, हमने सिर्फ दो अभी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, सिंपल एट्रीब्यूट एंड कॉम्पोजिट, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज स्टोर्ड एज इट इज। जैसी हम वैल्यू डालते हैं सारी जिंदगी वो वैल्यू वैसी रहती है, अनलेस कि हम खुद जाके चेंज ना करें। तो देखो, अगर एक बच्चा है या एक स्टूडेंट है या किसी मुल्क का शहरी है, उसका नाम एंटर करें तो क्या वो चेंज होगा जब तक हम ना करें चेंज? नो सर। क्या उसकी क्लास चेंज होगी? यहाँ पे स्टूडेंट होना था यार, सॉरी। उसकी क्लास चेंज होगी? नो सर। नो सर। और क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी? नो सर। तो इसका मतलब है ये ऐसे एट्रीब्यूट है जिनकी वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब देखो, मैं अभी वापस आऊंगा, एक स्टेप आगे जाते हैं। देखो बेटा, एज, when you entered into Islamic or you joined Islamic University, you were 18, 18 and a half, 19, 19 and a half. तो ये तुम्हारी एज थी। If I would have entered your age at that time, like किसी बच्चे की उम्र 19 थी, अगर मैं उसकी उम्र 19 लिख देता, I would have entered 19 as an age. So after 2 years today, what age I could find from the database? अगर मैंने 2 साल पहले उसकी उम्र 19 साल लिख दी होती 21 सर। तो आज उसकी एज उस डेटाबेस में से क्या मिलती? कैसे 21? कैसे 21? सर वही 19 सेम मिलती, वही सेम। सर डेटाबेस में खुद ब खुद तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो सर एज तो वही रहती जो कि है। ईयर ऑफ बर्थ, ये अगर इसको फॉलो करें तो फिर 21 ही मिलती है। क्या मैंने ये बात अभी की है? नो सर। तो मेहरबानी फरमाओ वहीं तक काम करो जितना मैं बता रहा हूँ बेटा। 40 लोग बैठे हुए, अगर आपने ये एक सेंटेंस यहाँ से, जो मेरी गलती है कि मैंने लिख दिया, ना लिखता तो बेहतर होता। आप ये पढ़ के चलाकियां ना फरमाए ना, आप ये बताएं कि अगर जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि अगर इसकी एज आज से 2 साल पहले डेटाबेस में 19 साल रखी जाती तो और डेटाबेस से आज पूछा जाता कि उसी बच्चे की एज क्या है तो क्या मिलेगी? सर जो उस टाइम रखी थी वही मिलेगी। बस ये जवाब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और अब stored attribute, an attribute whose value is stored as it is known as a stored attribute. Date of birth मैंने यहाँ पे रखी, और यहाँ पर देखो, ये मैंने दूसरे लोगों को तो डांट चुका हूँ, अब आपकी बारी है कि आप ये आधे आधे घंटे बाद ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मैं खुद लेट इन करूंगा सारों को। 10 मिनट में आ जाते हैं तो एक्सीलेंट, नहीं आ सक रहे और सो रहे हैं तो बिल्कुल मत आइएगा दोबारा, ये मजाक है क्लास के साथ। अच्छा अब ये देख लीजिए बेटा, ये एज है। अब अगर एज को वी वुड हैव टेकन एज द स्टोर्ड एट्रीब्यूट तो इट विल नेवर गिव अस द करेक्ट इंफॉर्मेशन। सो व्हाट वी डू, वी कीप दिस एज एज डॉटेड। हम मॉडल ही करते हुए इसको डॉटेड कर देते हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एज इज नॉट अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट, इट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सर डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए। We calculate age when a user asks for it. When he sends the query, send me the age of Ahmed या reg number 3254 का age मुझे भेजो, तो क्या होता है? At that time, this age is calculated. Age is equal to current year minus year of birth. तो क्या होता है? This age is not stored, rather it is derived and it is calculated from this attribute that is year of birth. तो हम ईयर ऑफ बर्थ लेते हैं और ईयर, इसका मतलब 2021 माइनस 2002, उसकी ईयर ऑफ बर्थ 2002 थी और यहाँ 2021 लिखा। जो ही हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमें अब जो एज मिलेगी दैट वुड बी फॉर एग्जांपल 21,
ठीक है ना। यानी अगर मैं कहता हूँ वो 1999 को पैदा हुआ था, सॉरी 1999, तो 2021 एंड 1999 तो वो खुद ब खुद हमें यहाँ पे 21 साल का मिलना शुरू होगा। तो लिहाजा इसको आपने देखना। मैं इसको एक मिनट में लिख के दिखा दूं, मैं गलती कर रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है मैंने कि एक बच्चा है जिसकी जो 2002 में पैदा हुआ था, उसका ईयर ऑफ बर्थ 2002 था, और अब अगर हम उसकी एज आज निकालेंगे, जब इस्लामिक में आया तो 17 साल का था, लेकिन अगर आज उसकी हम एज निकालें तो आज वो 19 साल का है। कैसे? 2021 माइनस 2002 इज इक्वल टू 19। तो 17 साल का बच्चा अब 2 साल के बाद 19 ईयर्स का है। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। अब एक काम सर करो, मैं थोड़ा सा ना इसके अंदर इसको ऐड भी कर दूं, ताकि ना अगर कोई भी बच्चा जरा सा कंफ्यूज है तो उसको हम यहीं पे ही कंट्रोल कर लें। ये है। अब अगर मैं कहता हूँ कि एक बच्चा आया और उसकी ईयर ऑफ बर्थ एज इज इक्वल टू 2021 माइनस 1999। तो ये देखो बेटा, whenever you will try to get the age, it will calculate in 2023 how old he would be। अगर मैं 2023 में उसकी उम्र मालूम करूं तो कितने साल हो जाएगी? 23 साल सर। 23 साल हो जाएगी। तो लिहाजा इसका मतलब क्या है? एज इज बीइंग कैलकुलेटेड एट रन टाइम। सो दैट इज व्हाई आई सेड दिस इज derived attribute. It is calculated at runtime. If I ask in next year 2022, so it will give me 22 years. So it gives me age like this. ठीक हो गया? यस सर। सर बोलो बेटा। यस सर, यस सर। सर सर इसकी अगर एक कोई और एग्जांपल भी दे दें सर काइंडली आप। मैं और भी देता हूँ, पहले आप लोग ये एक लिख लो, मैं फिर एक फौरन अभी आपको बता देता हूँ। एक और किसी एम्प्लॉय से ओके बनाते हैं, ठीक है? इसको आप लिख लो पहले जल्दी से, एक ठीक है सर। एग्जांपल और दे देते हैं। हो गया सर, लिख लिया सर। वेरी गुड। अब जरा ये वाला लिखो मेरा बेटा, फिर मैं आगे वो जो बच्चा कह रहा है एक मिसाल और दें, तो वो मैं एक और देता हूँ, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, याद रहना चाहिए बस। जी बच्चा लोग,
और एज को डॉटेड सा बनाना ये बताता है प्रोग्रामर को क्लास। तो ये जो है अब आपके पास एज डिराइव होगा, इसलिए डॉटेड है। ये आपके डिजाइनर और जो इम्प्लीमेंट करने वाला है उनके बीच में ये एक नॉलेज लेकर आता है, इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि ये एट्रीब्यूट कुछ खास है, इट इज स्पेशल। तो फिर वो पूछता है कि यार इसका ये लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक पढ़ते हैं, बताते हैं, एंड देन दे पुट दिस फॉर्मूला बिहाइंड दैट कि जब ये बटन दबेगा कि शो मी द एज ऑफ दिस पर्सन, तो वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द ईयर ऑफ बर्थ एंड वी विल शो हिज एज। तो ऐसे हो रहा होता है। इसको बनाओ जल्दी से। हो गया बेटा? यस सर, हो गया। अब देखो जरा सब बच्चे इधर, ये देखो मैं यहाँ पर ना, मुझे बच्चा कह रहा है कि सर एक नया एक कोई दूसरी डिफरेंट मिसाल दे दें, ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। तो मैं इधर से इसको और ये देखो, तुम लोग इसको मेरे साथ से बनाओ, समझाते हुए मैं रुक जाऊंगा जहां पे मुझे रुकना होगा, ठीक है? सो दिस इज एन एंटिटी क्लास ऑफ एम्प्लॉई, ठीक हो गया। और यहाँ पे ई आई डी, ई नेम, और देखो मैं यहाँ पे हरकत करने लगा हूँ और ये मैं अभी पंगा ले रहा हूँ, ठीक है? इसको बनाना नहीं तीसरे वाले को, बस ये दो बना लो जिसके अंदर मैं लिख दूं पहले ई आई डी, एम्प्लॉय की आईडी। अब देखो एम्प्लॉय नेम, और ये अंडरलाइन नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है। अच्छा, अब जरा नोट करो कि एक एम्प्लॉय है, उसका नेम है, और ये चीज जो है ये मैं अब यहाँ पे देखो क्या लिखने लगा, अभी लिखना नहीं, पहले समझना इसको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। नोट करना जरा सारे, पहले समझ लो। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग इसका मतलब है किस साल में वो शख्स नौकरी पर आया। अब फर्ज करो कि मैं अपनी ही मिसाल देता हूं कि जब मैं इस्लामिक में आया तो दैट वाज 1999, ठीक है? आप में से बात की पैदाइश से भी पहले। अब जरा यहाँ पे नोट करो कि अगर आज पूछा जाए कि सर आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो जरा नोट करना। और एक सेकंड जरा रुको, मुझे इसमें टूल, मैं देखो कहा था टूल सीखना है आपने, टूल दूसरा है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा देसी तरीका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा डॉटेड लाइन्स के लिए, ताकि फीलिंग बिल्कुल क्लियर हो कि यार ये नॉर्मल एट्रीब्यूट नहीं है, ये डिराइव्ड है। अब आप इसको मेरी तरह बना लीजिए इसको फिलहाल। अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, इसके अंदर अगर मैं लिखूं, और ये तुम सब भी लिखोगे, एक्सपीरियंस, ठीक है? ये जरा सब बच्चे लिखो इसके अंदर। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर ये इफ दिस एक्सपीरियंस वुड हैव बीन अ नॉर्मल एट्रीब्यूट, अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट, एंड व्हेन आई केम टू इस्लामिक, और उस वक्त मेरा जो रियल एक्सपीरियंस था प्रोफेशनल लाइफ का 2 इयर्स था, सिर्फ 2 साल था, तो यहाँ पर अगर वो 2 लिख देते तो यहाँ आज मेरा एक्सपीरियंस कितना होता? सर 2 ही होना था। 2 ही होना था। और फर्ज कर लो, अगर तुमसे और आसान, ये वाली बात बाद में करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे यूं करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, 0 होता। तो आज तकरीबन 21-22 साल के बाद मेरा कितना एक्सपीरियंस होता? 0 सर। 0 ही होता। तो इसका मतलब है ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। जिस बच्चे ने पूछा था कि सर कोई और एग्जाम्पल दे दें,
सर मैंने अब देखो बेटा, अब चलो इधर देखो बेटा, सारे बच्चे गौर करो। एक्सपीरियंस इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस, सॉरी, माइनस ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो अगर आप नोट करो तो इस तरीके से अब आप आसानी के साथ मेरा एक्सपीरियंस निकाल सकते हो। कैसे? ई एक्सपी लिख देता हूँ सर, इज इक्वल टू कर देता हूँ 2021 कर देता हूँ, माइनस 99 कर देता हूँ। तो मुझे नहीं पता मेरा इसमें कितना ये एक्सपीरियंस है। आई थिंक ये शायद कहीं 22 साल के करीब कहीं बनेगा। कहाँ चले गए तो क्या एक्सपीरियंस दिस यहाँ तक इज इक्वल टू, और अगर मैं इसको इक्वल टू करूं तो ये मेरा तकरीबन 21 या 22 साल जो भी बन रहा है ये वो बन रहा है। पहले बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आता है? यस सर। आप जरा एक चीज पे गौर करना कि अगर ये लोग एक, ताकि अब आपने मुझसे पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज उसी क्लास में हमने वो लोग ने कहा था पूछा नहीं था तो आपने पूछ लिया है। अगर यहाँ पे मैं एक चीज और भी रख दूं, जैसे मैंने कहा कि मैं जब आया तो मैं कहीं और से जॉब छोड़कर आया था, टीचिंग मेरा पैशन था, तो मैंने कहा ठीक है जी मैं आ रहा हूँ। तो अगर ये भी रखते और मैं यहाँ पर आता और ये मुझे कहते कि भाई टीचिंग का कितना है 0, और आपका प्रीवियस एज एन इंजीनियर आपने कुछ और काम किया है, हाँ जी मैंने किया था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका टाइम बताएं, मैंने कहा जी 2 ईयर्स। कोई मुझे बताएगा अब यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है? सर ये प्लस हो जाएगा, प्रीवियस कैसे? एक्सपीरियंस इसके बाद प्लस हो जाएगा। बताओ ना। तो सर ये करंट ईयर माइनस ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और प्लस प्रीवियस एक्सपीरियंस। और इस प्लस और माइनस में कहीं पे भी ब्रैकेट्स तो नहीं आने वाली? यानी पहले आपने ये निकालना है, बात समझ रहे हो? फिर पहले आपने आपको माइनस करना है, फिर बाद में प्लस करना है। बाद में प्लस करना है। और ये क्या होगा, ये आपके एक और एट्रीब्यूट की वैल्यू इसमें शामिल होगी, प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब बताओ बेटा, सब बच्चे बताओ, वो बच्चा भी जिसने कहा था कि मुझे कोई और मिसाल से भी समझाएं, और बाकी लोग भी, कि समझ में आता है कि नहीं? जी सर आ रहे आ रहे। एक्सीलेंट। अब आप क्या करो, जल्दी से मेरा, सॉरी सॉरी, मैं इसको स्लाइड पर ही ले जाता था कि चलो बाकी बच्चों का भी भला हो, जब सवाल कर ही दिया है तो उनको भी भिजवा दो। इधर ही आ जाओ। और ये तुम लोगों ने बना लिया है ना सबने? यस सर। यस सर। स्लाइड इसको डिलीट करो ताकि एक मिसाल हम यहाँ पे और डालूंगा तुम्हारे लिए ये भी। चलो मेरा बच्चा जरा ना, चलो जैसे भी आ रहा है उसको यहाँ पे बना दो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको रन कर दो। ये जल्दी से बना लो ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए कि अच्छा ऐसे प्रोग्राम पीछे हो रहा होता है। हाँ जनाब, कहाँ तक पहुंचे सब बच्चे? हो गए सर। लिख लिया? सबने बना लिया बेटा? यस यस सर। सर। कोई रह गया तो बताओ। यस सर। चलो यस। चलो 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 बिस्मिल्लाह। अच्छा अब देखो बेटा, अब एक और कॉन्सेप्ट है, सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। आइए पहले समझना, लिखे कोई भी ना, पहले समझ लेते हैं।
कि जब भी कभी मैं प्राइमरी की वैल्यू दूं मुझे उस एट्रीब्यूट की एक ही वैल्यू मिले, वी कॉल इट अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। मैं इसमें आपको यहां पर लाना चाहूंगा और यहां पर हम फाइल सेव, इसको हम अनटाइटल्ड के साथ ही कर लेते हैं और न्यू को इधर से हम स्टोर डिराइव्ड एंड दिस, इसके नीचे नहीं, ठीक है, ओपन, ये यहां से मैं आपसे भी बात नहीं, किस नाम से सेव किया, राइट। अब जरा यहाँ पर देखना मेरा बच्चा, और इसको जरा गौर से, जो चीज पे मेरा हाथ हो वो आपने नजर रखनी है और आपको ये 1 मिनट में समझना है। देखो, इफ आई गिव यू 1 रेज नंबर, हाउ मेनी नेम्स कैन यू गिव मी? एक ही आएगा सर। 1. हाँ, अब यहाँ पे गौर करो, इफ रेज नंबर इज 4, ये बनाते नहीं है लेकिन मैं इससे उस क्लास को भी आपसे पहले समझाते हुए बनाया था, तो मैं इधर दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको सिर्फ समझ लें, बनाते हम टेबल्स बाद में। 4 3 2 1 अगर मैं बोलूं तो आप मुझे कहेंगे मोहम्मद जलाल खान। देखो, अब जरा सोचो, मोहम्मद जलाल खान एक नाम है, 3 नाम है? सर नाम एक है, 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। सर ये एक ही नाम है, लॉजिकली ये एक बंदे का नाम है, तो लिहाजा देखो, इफ आई गिव यू 1 राइट नंबर यू आर गिविंग मी 1 नेम, इफ आई एम गिविंग यू 1 राइट नंबर यू आर गिविंग मी हाउ मेनी क्लासेस? एक सर। एक ही, बट if I give you 4 3 2 1, how many IDs you are giving me? Hobby ID, मशागिल। 2 सर, 2 सर, not one। ये देखो मैंने जान 2 सर, H1 2, H1 भी इसी का है, H3 भी इसी का है। He has some hobby like hockey as well as music। अब होना क्या शुरू हुआ, देखो बेटा यहाँ पे गड़बड़ शुरू हो गई। ये वाला एट्रीब्यूट जो हॉबी है, दिस इज नॉट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, रादर इट इज आस्किंग मी टू कीप 2 वैल्यूज फॉर इट, H1 and H3। अब डेटाबेस हैज सम इशू that we cannot keep more than 1 complete value। बेशक देखो मोहम्मद जलाल खान है ना, but it is 1 value। मोहम्मद रान सईद कुरैशी है ना, but that is 1 value। Here H1 is 1 value, but can I say that H1 and H3 are same values, are 1 value? Can I say H1 and H3 are 1 value? No sir। आप इसे कैसे पढ़ोगे? H1 उर्दू में सुनो, आप उसको कैसे पढ़ोगे इसको? जब मैं कहूंगा यार रेज नंबर 2 की मुझे जरा हॉबी आईडी बता दें, H1 H3, क्या यही बोलोगे या तुम यूं कहोगे H1 और H3? H1 और H3 सही है सर। और H3, इसका मतलब ये है कि when we speak H1 and H3, that means this is logically not a single value, these are 2 values। So if an attribute can give more than 1 value for a single instance or a single record of an entity class, 4 3 2 1 के लिए it is giving me 2 values, and database restricts me that in a cell, एक सेल में only keep 1 logical value। मैं फिर कह रहा हूँ 1 logical value does not mean कि एक, यहाँ पे मोहम्मद जलाल खान एक ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे H1 / H3, H1 and H3, H1, H3 हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारा जहन, इंसान का जहन अंडरस्टैंड these are 2 values। Yes or no? Yes sir। Yes sir। So name and class are the single valued attributes because these are giving always 4321 Muhammad Jalal Khan, 4321 BSFEF 19। But when I say 4321 hobby में H1 and H, hockey and music, इसका मतलब ये हुआ कि hobby, ये देखो यहाँ, hobby ID and hobby name are 2 attributes that are multi-valued attributes। That means if I give you 1 right number, you can give me more than 1 hobby ID as well as more than 1 hobby name। Yes or no? पहले तो ये बता।
यस सर। बिल्कुल पक्का? यस सर। वेरी excellent. Whenever in a class, if 2 or 3 students sit together and they are doing something, then I simply say that, यार ये आपने क्या ग्रुप बनाया है? Why you are making a group? Why don't we join up? तो देखो क्या मतलब हुआ, अगर 2 लोग हों, 2 or more, and they have some common interest, that means they have some logical association, गेम खेल रहे हैं, वो गप्पे लगा रहे हैं, जो भी, तो यहाँ पर क्या है, whenever I give you H1, I get what? Hobby name. Whenever I give you H1, what name you give me for the hobby? हॉकी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट रही है। सॉरी, मुझे बताओ ना, चलो आप बताओ, अभी तो पेपर हुई है कि नहीं? अभी भी नहीं। सर वो फटी हुई आवाज आ रही है आपकी, सही समझ नहीं नहीं आ सर रही। नहीं हुई। अच्छा रुक, माइक्रोफोन का इशू है शायद। पहले ठीक की आवाज चल रहा है तो शुरू हुए थे। यस सर, पहले ठीक थी, अब बिल्कुल फटी हुई आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अब आप लोग मुझे सुन सकते हैं? यस सर। यस सर। चलो बस ठीक है, ब्लूटूथ ऑफ करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा था तो मैंने कहा दोबारा, चलो ठीक है। अच्छा अब वापस आते हैं, एंड नाउ लेट मी नो वन थिंग, कि मैंने कहा था कि अगर देयर आर 2 people or 2 persons who have some common association, some common interest, so they form a group, yes or no? यस सर। So here, hobby ID has a link, has some association with the hobby name. Yes or no? यस सर। So Yes, that sir. means सर they, sorry? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। ओ मैं वापस तो अभी आया, तो यार मुझे बताया करो फौरी तौर पे, जवाब नहीं दिया करो सर भी आप पहले बताएं, नजर ही नहीं आ रहा मैं तो, क्योंकि हमारा ध्यान इस पर होता है कि रिकॉर्ड हो रहा हो और आपके नेक्स्ट क्लास को, यानी जब आप दोबारा पढ़ने बैठे तो मिल जाए। अच्छा अब देखो, अब नजर आ रहा है बेटा? यस सर। आज फौरन बताया करो। अच्छा आप देखो, हॉबी आईडी और हॉबी नेम जो है, दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप, यस और नो? यस सर। तो देखो बेटा, अब हुआ क्या, जब ये रिपीटिंग ग्रुप आया तो मुझे इस रिपीटिंग, आई अकोमोडेटेड दिस रिपीटिंग ग्रुप बाय पुटिंग वन वैल्यू इन वन सेल एंड द सेकंड वैल्यू इन द सेकंड सेल, यस और नो? यस सर। And due to this, in fact, you can see this duplication 4321, Muhammad Dalal Khan, BSSC F19, BSSC F19। बेटा 3-4 ईयरफोन्स हैं, ये भी है, पता नहीं मसला आ रहा है सब में। अच्छा अब देखो मेरा बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही है, यस और नो? यस सर। अब जरा देखो, एक और ग्रुप नजर आया मुझे जनाब, कोर्स टाइटल क्रेडिट आवर्स, तो यहाँ पे है कोर्स टाइटल, यहाँ पे क्रेडिट आवर्स भी है। अब मैंने कहा
4321 इज टेकिंग व्हिच कोर्स, आपने फौरन कहा सर CS242, मैंने कहा एक्सीलेंट, और आपने कहा सर एंड 241, मैंने कहा ठीक है, नहीं सर एंड 240। अब देखो क्या हुआ, ये वी पुट दीज इन सेपरेट सेल्स, IDS OS ACP, राइट, 8 दोगे तो 4 4 3, लेकिन नुकसान क्या हुआ, वी आर हैविंग दीज डुप्लीकेट डेटा। देखो राइट नंबर मैंने रेड से दिखाया है, प्राइमरी की डुप्लीकेट कभी हो ही नहीं सकती, ये हो रही है, नेम डुप्लीकेट, इसका मतलब है रिपीटिंग ग्रुप इज अ प्रॉब्लम, यस और नो? यस सर। यस सर। इसको दूर करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ाया है, सिंगल वैल्यू दैट गिव्स अस द सिंगल वैल्यू फॉर दैट थिंग। तो देखो नेम और क्लास क्या है, सिंगल वैल्यूड है, ये देखो नेम एंड क्लास समझ में आता है। और मल्टी वैल्यूड कौन से हैं, हॉबी आईडी एंड हॉबी नेम। क्यों, ये मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं एक ही के लिए, एक ही रिकॉर्ड के लिए। कोर्स कोड टाइटल राइट आर मल्टी वैल्यूड है। लेकिन अब देखो जरा मुझे बताओ, क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर एक शख्स कोर्स ले रहा है CS242, मेरा कोर्स ले रहा है IDS, तो लाजिम हो कि वो हॉकी खेले, इसका ताल्लुक बनता है आपस में? सर आपकी आवाज फिर प्रॉब्लम आ रही है सर, बार बार बैठ जाती है। अच्छा, शायद या फिर ये कोई मौसम का असर है, क्योंकि ये सिग्नल्स भी पूरे हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता कि सिग्नल्स का इशू होगा। अच्छा अभी मुझे सिर्फ, सॉरी, लाजमी नहीं है, ठीक है, किसी ने जवाब दे दिया मेरे सवाल का कि सर लाजमी नहीं है कि द पर्सन हु इज टेकिंग CS242 ही इज ऑल्सो टेकिंग, ही इज ऑल्सो प्लेइंग हॉकी, ही हैज सम हॉबी एज हॉकी। सर लाजिम नहीं है, ये तो कोई भी आपस में ताल्लुक ही नहीं है, या ताल्लुक है? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर करना, मैंने ये जो येलो दायरे बनाए हैं ना, दीज डिस्क्राइब हियर, ये अलग ग्रुप है, कोई और ही ग्रुप है, और ये अलग है, कोई और ही ग्रुप है, यस और नो? यस सर। यस सर। अब मेरा बच्चा एक काम कीजिए, आपने अभी सिंगल वैल्यूड की डेफिनेशन लिखनी है, लिखी है कि अभी नहीं? नो सर। लिखनी है। सिर्फ पहले वैल्यू लिखो, ये देखो मैं तुम्हें यहाँ से शुरू करूंगा ताकि तरतीब हमारी खराब ना हो। यहाँ से आप इसका ही लिखो, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये लिखो सब बच्चे जरा पहले। लिख लिया बेटा? नो सर। चलो लिखो। अब लिख लिया? यस सर। सर। अब जरा इधर आ जाओ। अभी कोई कुछ नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं करने क्या लगा हूं, ताकि तुम्हारे पास एक एक चीज अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको मल्टी वैल्यूड कर रहा हूं, और देखा जा, रुकना, सब गौर से देखो कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक चीज यहां से उठाना चाह रहा हूं, और उसके लिए मैं चाहूंगा कि मुझे जरा बिग रबर मिले, और ये सब मैं उड़ा सकूं यहां से थोड़ी सी देर के लिए। मैं तुम्हें सिर्फ एक एक चीज एक वक्त में पढ़ूं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर हो जाए। ये यहां तक मिटा दिया है मैंने सब, अब सारा कुछ मिटाओ यहाँ। क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये आ गया जी, ठीक है, ये आ गया जी, ताकि तुम्हें बस वो छोटे बच्चों वाली डायग्राम मिले और तुम्हारे लिए एक आसानी हो कि बस यही हमने बनानी है अभी के लिए। सो नाउ जस्ट डू दिस। ये लो मेरा बच्चा, ये देखो, ये तुम्हारे पास सिंगल वैल्यूड की मिसाल है, इसको बना लो जल्दी से, ताकि हर कॉन्सेप्ट अलग हो, फिर जब इसको बाद में ERD में मिक्स करेंगे तो फिर एक डायग्राम में सब नजर आ जाएगा। डू इट।
बना ली सर। बुला लिए सर। बना लिया, डन ठीक हो गया। अब देखो जरा मेरा बच्चा, इसके बाद अब जो हमारे पास है वो ये है। अब आपने ये येलो वाले को भी साथ बनाना है, यानी अब आपने इसी डायग्राम को नहीं बनाना, नई बनानी है, नई। और उसको आपने कितने नीचे बनाना है, पहले ये लिखो, ये वाली डेफिनेशन, ये वाली, एन एट्रीब्यूट दैट कैन हैव that can have more than one ये ले लो मेरा बेटा, जल्दी से इसको लिखो। ये बताओ अब बेटा, हो गया सर। बुला लिए सर। लिख लिया अब सर। इसकी एग्जांपल्स दो लिख लो, फिलहाल दो लिख लो, ताकि तुम्हारे पास एक वजूद है। एक हॉबी आईडी, एक हॉबी नेम, फिलहाल सिर्फ ये लिखो। सर सिर्फ हॉबी आईडी और हॉबी नेम लिखना है बस। नहीं, हाँ मतलब ये आपने बनाना, ये पूरा है स्टूडेंट वाला, सॉरी। लिख लो, लिख हॉबी आईडी हॉबी नेम लो, डायग्राम अब ये पूरी बना लो, लिख लो हॉबी आईडी हॉबी नेम, और फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के कोड कोड टाइटल और टाइटल की लिख लो, ताकि पता चल जाए कि 5 है मल्टी वैल्यूड। फिर जब मैं रिपीटिंग ग्रुप लिखवाऊंगा तो उनको अलग कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हॉबी आईडी, हॉबी नेम, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड क्रेडिट आवर्स। हाँ जी बच्चा लोग, मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? अभी ये डायग्राम बस ये बनानी है, देखो मेरा बेटा, ये वाली समझ में आ रहा है? यस सर, कोर्स कोड भी इसमें लिखना है। कोर्स कोड, टाइटल और क्रेडिट आवर भी लिखना है ना, और तस्वीर पूरी बना लो, अभी टेबल नहीं बनाना बस। ओके सर। तुम्हारी टेंशन ही मुका दूं। डुप्लीकेट स्लाइड, इस पूरे पेज को फैला दे। ये देखो, ये तुम्हारी डायग्राम बन गई है, बस तुमने ये बनानी है अभी के लिए। डन सर। शाबाश, बाकी लोग भी बनाओ जल्दी से, और इनको लेबल कर लो। यू मस्ट लेबल हॉबी आईडी हॉबी नेम एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, क्रेडिट आवर्स एज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इनके आगे लिख लो कि ये जो डबल, याद रखना जिनको डबल ओवल से शो कर दें, अगर डिजाइनर शो कर रहा है तो फौरन उससे प्रोग्रामर या इम्प्लीमेंट डेटाबेस इम्प्लीमेंट करने वाला पूछता है, यार भाईजान इसमें कोई मीनिंग है या गलती से आपने डबल कर दिया है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं यार, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इनमें वैल्यूज एक से ज्यादा आ सकती हैं, तो लिहाजा ये सिंबल ही डबल है, ये सिंबल खुद डबल है। येलो वाले नहीं होते, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाने हैं, मैं बता देता हूँ क्यों। नाउ चेक, हियर वी हैव दीज 5 are forming some one group here, or these are 2 different groups। मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर तो आप फौरन जल्दी से बता देंगे, लेकिन अभी वैसे बताओ, क्या इनका आपको भी कुछ ताल्लुक नजर आ रहा है हॉबी? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि जो लड़का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेगा जी, वो
जरूर किताबें पढ़ा करेगा या कहानियां पढ़ा करेगा, ऐसा होगा? नो सर। नो सर। यस सर, नो नो सर। सर। अच्छा नो सर, ठीक है। अब जरा इधर आ जाओ और ये देखो डेफिनेशन, ये है, ये तुम्हारी डेफिनेशन है रिपीटिंग ग्रुप की, कि जनाब इफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स हैव सम लॉजिकल एसोसिएशन देन दोज आर नोन टू फॉर्म अ रिपीटिंग ग्रुप। अगर दो या ज्यादा में आपस में कोई एसोसिएशन, लॉजिकल एसोसिएशन आ जाए तो वो रिपीटिंग ग्रुप बनाते हैं। तो अगर अब तुम देखो तो इस वाले में तुम्हें खुद ब खुद ये एक नजर आएंगे दैट हैव सम लॉजिकल एसोसिएशन, दिस वन हैज दीज थ्री लॉजिकल एसोसिएशन, इन तीनों के बीच में सॉरी, तो क्या हो जाएगा, वन ग्रुप इज दिस एंड वन रिपीटिंग ग्रुप इज दिस। दैट इज व्हाई आई पुट दीज येलो लाइंस, अदरवाइज वी डू नॉट पुट दीज लाइंस अराउंड एनी ग्रुप। तो अब आप पहले डेफिनेशन लिखो रिपीटिंग ग्रुप की। If two or more than two attributes have some logical association, ये they नहीं है then है, then those are known to form a repeating group। अगर दो या ज्यादा में कोई लॉजिकल ताल्लुक आ जाए तो हम कहते हैं यार ये तो एक ग्रुप बनाना शुरू हो गया है। अच्छा जी, लिख लिया है? यस सर। यस सर। अब एक काम करेंगे हम सब मिलके, और वो क्या काम होगा जरा ये देखो। अगले उसके लिए हम लोग वापस आएंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर मिल सके। डुप्लीकेट स्लाइड डिलीट करो इसको, और ये लो बच्चा लोग, अब आप ये टेबल बनाओ ताकि आपको समझ में आए कि यार ये हो क्या रहा था हमारे साथ। ड्रॉ इट डाउन जल्दी से, चलो शाबाश। और यहाँ पे मैंने एमजे की उस वक्त क्लास को समझाने के लिए लिखा था, एमजे की क्या चीज है बेटा? सर मोहम्मद जलील खान नाम है। मोहम्मद जलाल खान, बिल्कुल ये लिखना पूरा आप लोग, ठीक है, उनको समझाने के लिए मैंने किया था। सर ये टेबल हमने रिपीटिंग ग्रुप्स के नीचे ही बनाना है। उसके नीचे बनाओ, मैं फिर उस पर आपको मीनिंग दूंगा इसका, आप सिर्फ ये बना लो, सिर्फ मल्टी, देखो बात सारे जरा गौर करो। आपको मल्टी वैल्यूड तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि हॉबी आईडी एंड हॉबी नेम आर मल्टी वैल्यूड। एक 4321 के लिए दो दो हॉबी आईडी मिल रहे हैं, दो दो हॉबी नेम मिल रहे हैं। एक 4321 के लिए तीन तीन कोर्स मिल रहे हैं, हाँ या नहीं, पहले ये बताओ। यस यस सर। सर। तो तुम लोग अब करो इसको, तुम बनाओ, ये तुम्हारे फिलहाल तो तुम्हें ये नजर आना शुरू हो जाए कि यहाँ पे मल्टी वैल्यूज है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, और जिनकी वजह से ये डुप्लीकेशन, ये नजर, मोहम्मद जलाल खान, मोहम्मद जलाल खान, मोहम्मद जलाल खान, BSSCF 19, BSSCF 19, तो ये बहुत दफा आ रहा है। और साथ में अगर तुम ये गौर करो तो प्राइमरी की तो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती, ये बस एक दफा होती है एक आदमी के लिए। तो यहाँ पर ये तीन दफा आ रही है डुप्लीकेट, देखो ये, तो ये नहीं, ये मैंने रेड वे बनाया है। तो आप इसको बना लो जल्दी से, फिर मैं इस पे बात करूंगा। रिपीटिंग ग्रुप, ये रिपीटिंग ग्रुप है, ये देखो। H3 म्यूजिक दलाल के पास भी है, और H3 म्यूजिक किसी और की हॉबी है, जैन की भी। यस और नो? यस सर। तो ये टेबल बनाओ पहले, फिर तुम्हें फौरन मैं इसके बाद अगले उस पर सॉरी लेके जाता हूँ, तो ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।
बना लिया सर। बना लिया है? बाकी सब भी बताओ जल्दी से, जो बना रहे हो बता दें कि हम बना रहे हैं ताकि मैं रुका रहूं। बना लिया सर। बना लिए सर। बना लिए। एक्सीलेंट, चलो मेरा भाई अब जरा इधर वापस आओ और अब देखो ये लाइन जो तुमने बनाई है, तुमने ये बनाया था बॉक्स, तो नोट करो ये हॉबी आईडी और हॉबी नेम जो है नोट करना H3 एंड म्यूजिक। नोट करो यही वाला ग्रुप H3 एंड म्यूजिक सिर्फ जलाल के साथ नहीं है, जैन के साथ भी है। यस और नो? यस सर। तो आई वॉज टेलिंग यस टू द सर। क्लास की इस तरह से बुक में नहीं दिया होता, लेकिन आप इसको बनाओ कोर इसमें ताकि आपको नजर आए कि यार ये ग्रुप देखो रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग ग्रुप है। यस और नो बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस यस सर। सर। अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं तुम्हें इस एक लम्हे के लिए कि यार ये जो जैन है ना, जैन ACP पढ़ रहा है, तुम मैं कहूँ उसका लिखो जरा जैन के आगे, तुम लिखोगे CS240 और सर इसके लिए आप ये कर दीजिए कि आप यहाँ पे ACP लिख दें। ACP आंखों कुछ डिफरेंट लग रहा है, कुछ यहाँ पे फिर एक रिपीटिंग ग्रुप अपीयर होना शुरू हुआ है। यस सर। यस सर। क्या हुआ है? रिपीटिंग ग्रुप आ रहा है सर। कौन सा सर वो CS240 ACP सर, वो भी है, वो वेरी गुड सर, मोहम्मद ये जलाल देखिए खान के XB। पास भी था। वेरी गुड उनके सर। पास। ये जो है ना, अगर आप इसका क्रेडिट आर भी लिख देते दोनों तीन तीन, तो सर ये पूरा ग्रुप फिर रिपीट होता नजर आता, मोहम्मद जलाल खान के लिए भी और मोहम्मद जैन के लिए भी। तो सर अब हमें समझ में आ रहा है कि ये तो डेटा रिपीट हो रहा है, हाँ या नहीं, पहले ये बता दो। यस सर। यस एक्सीलेंट। सर। अब देखो मेरा बेटा, एक बात याद रखना, मैंने आपको इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास आई सेड दैट रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉट बियरेबल बाय द डेटाबेस पीपल। यस और नो? यस हमारी सर। कोशिश होती है कि जितना मुमकिन हो रिडंडेंसी को खत्म करें, लेकिन यहाँ क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दीज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, बिकॉज ऑफ दीज रिपीटिंग ग्रुप्स, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, देखो BSSEF19 BS, ये वही जलाल है, मोहम्मद जलाल मोहम्मद जलाल मोहम्मद जलाल। तो अगर इफ ही इज टेकिंग 30 कोर्सेज, वी आर गेटिंग हिज नेम फॉर 30 टाइम्स, वी आर गेटिंग द क्लास फॉर 30 टाइम्स। ये तो बहुत ज्यादा है, सारी डुप्लीकेशन है। यस, तो चेक करो, मैंने यहाँ पे जुमला लिखा है, repeating group results into redundancy or duplication of data. Yes or no? यस सर। ये हमारी यस सर। परेशानी है। मतलब है कि हमें इससे कोई छुटकारा पाना पड़ेगा, और वो क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो जस्ट राइट डाउन वन बिग लाइन, ये हेड नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा कंक्लूसिव सा हमारी एक वर्डिंग है जो हम देना चाहते हैं कि यार इसका नुकसान क्या था, क्यों आप कह रहे हैं कि इमरान ने कहा इसको आपने ठीक करना है, ठीक करने की तकलीफ क्यों पड़ी आपको? तो जरा देखिएगा, 130 कर देता हूँ और मैं इसको जरा सा नीचे इस वाली लाइन को जरा इंपॉर्टेंट करके लिखो यार, ये रिपीटिंग ग्रुप क्या करता है, डुप्लीकेशन लाता है, इससे जान छुड़ाओ। लिख लो तो बताना बेटा। यस सर, हो गया। सर। वेरी गुड मेरा बेटा। अब देखो जरा, मैं अब एक काम करने लगा हूँ, इधर सबसे नीचे मैं जाऊंगा, इसको डुप्लीकेट कर लूँ जरा एक सेकंड, ताकि तुमसे मैं एक बात करूँ। सोल्यूशन क्या है सर, फिर आप इसको क्या सोल्यूशन देंगे? तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ मैंने लिखा है सोल्यूशन फॉर रिपीटिंग ग्रुप। अब समझना पहले, इफ वी हैव अ रिपीटिंग ग्रुप, अगर एक ग्रुप है, हमारे पास दो है, वी मॉडिफाई द ERD, हम डायग्राम को चेंज करते हैं, एंड मेक अ न्यू एंटिटी क्लास, एक नई एंटिटी क्लास बनाते हैं, इन विच वी कीप एट्रीब्यूट्स ऑफ वन रिपीटिंग ग्रुप। उस रिपीटिंग ग्रुप के तमाम एट्रीब्यूट्स उसमें ले जाते हैं, और फिर रिलेट दैट न्यू एंटिटी क्लास, उस वाले एंटिटी क्लास को किससे मिलाते हैं? ओरिजिनल से, जिसमें क्या रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स रह गए, बाकी मात्रा एट्रीब्यूट्स रह गए। यस और नो? यस तो सर। देखो जरा, सर। एक मिनट के लिए वापस आते हैं, अगर मैं दिखा दूं, फिर इसको हम बना लेंगे बाद में, अभी नहीं बनाएंगे। लेकिन ये देखो, एक मेरे पास था हॉबी का रिपीटिंग ग्रुप, ये देखो ऊपर तस्वीर में सब बच्चे, ये देखो हॉबी था ना, तो उसने यस कहा सर। कि एक अलग क्लास बनाओ और हॉबी वाले एट्रीब्यूट उसमें ले जाओ और उसको स्टूडेंट के साथ जोड़ दो। और क्योंकि दो ग्रुप है, कोर्स का भी है, तो इसकी भी अलग क्लास बनाओ, इसको भी स्टूडेंट्स जोड़ो। तो नोट करो, देखो मैंने नीचे फिर क्या किया, मैंने स्टूडेंट्स में से निकाले हॉबी, ये रहा हॉबी आईडी हॉबी नेम, और मैंने रख दिया हॉबी की क्लास में।
मैंने कोर्स को उठाया, यहाँ ले आया और कोर्स को टाइटल क्राइटास को यहाँ पे रखा और इसको इसके साथ जोड़ दिया। पहले बताओ ये बात थोड़ी सी आई कि नहीं आई? यस सर। थोड़ी सी या पूरी? सर आ गया समझ। समझ में आ गया। चलो अब जरा देखो, जरा एक सेकेंड, तुमने अब करना क्या है सब बच्चों ने, जिसके बाद तुम्हें आज का लैब वर्क मिलने वाला है, ताकि अच्छा है थोड़ा सा काम को आगे उसको भी बढ़ाते हैं, दोनों काम साथ साथ होते हैं। सो नाउ राइट डाउन दिस एंड देन ड्रॉ दिस। जल्दी से मेरा बेटा। यार यूनिवर्सिटी कब खुलवा रहे हो? अब थक गए हैं यार, बगैर तुम लोगों को देखे पढ़ाए हुए। ये तो बड़ा वाहियात सिस्टम है जिसमें पता ही नहीं है कि अगला क्या कर रहा है। और मेड की सर तो आज डेट शीट भी आ गई है ऑनलाइन। 12:30 मैंने पता कर लिया, मैंने उन्हें क्या इज इट होना था ना ऑनलाइन सर। या नहीं, उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा आज होना है। नो सर, आज शफकत महमूद का सर 12:30 पे सर उसका वो होना था, डिसाइड करना था कि सर नेक्स्ट 1 मई तक सर बंद रखेंगे या खुले रखेंगे। यार ये तो बड़ा नुकसान है तुम लोगों का ना, जिन बच्चों ने सब ये अपने चीजों को ऑनलाइन पढ़ा है। तुम लोग अभी नहीं समझोगे, लेकिन बाद में तुम चीखें मारोगे गलत हो गया था हमारे साथ, इतने पैसे दे के भी बैंड बज गया। नहीं बहुत, सर पहले हम लोग एंजॉय कर रहे थे, तुम लोग इंजॉय लेकिन अब नहीं, अब हम भी नहीं, करते हैं। पहले इंजॉय कर रहे थे, अभी भी बहुत से दोस्त कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना है कल नौकरी किस उस पर लोगे। डिग्री तो मिल जाएगी सब ए और बी प्लस के साथ, लेकिन जब आता कुछ नहीं होगा तो कोई मामे का पुत्र नहीं है कि हर एक को नौकरी मिले। दो चार होंगे मामों के पुत्र, उन्हें मिल जाएंगी, लेकिन बाकी 50 लोग जो है ना जूते खाते फिरोगे। बस ये सोचना। मैं तो ये परेशान अभी से हूँ कि समझ नहीं आ रहा, 70-70-80 हजार बच्चा पे कर रहा है, मेरे अपने भी पे कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर घर बैठ के ये तमाशा ही लगा हुआ है कि आधे बिस्तर में आधे बाहर, और पता नहीं, मुझे तो ना पढ़ाने का मजा आता है। पता ही नहीं है कि आगे 26 लोग हैं, उनमें से कितने इस वक्त जाग रहे हैं आपके सामने, कितने इस वक्त कहीं उठ के जा चुके हैं दही लेने के लिए। अब तकलीफ दे हो चुका है सिस्टम में। बाजार खुले हैं, शीशा सेंटर खुले हैं, सब खुला हुआ है, याशियां हो रही हैं, बस बंद करना है। तालीम बंद कर दे सबसे पहले। इधर सर बाजार वगैरह सब बंद कर दी, कहाँ पे? वाह कैंट में। वाकई हर जगह बंद कर दी ठीक है, सर, हमारे गांव यस में भी सर, हर बंद कर जगह दी। बंद कर दिए सर। बहुत सही, सर बंद है हमारी तरफ भी। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा गुस्सा था कि यार सबसे पहले स्कूल, अगर मैं फ्रांस में बात कर रहा था तो वो मेरे मामू जान है, तो वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे सबसे आखिर में स्कूल होते हैं। कहते हैं हमें कर्फ्यू लगता है 6 से 6 तक, यानी रात शाम 6 से सुबह 6 तक, और वीकेंड्स पे कर्फ्यू है कि बिल्कुल आप घर से निकलेंगे नहीं। और पता नहीं कोई प्रिंटेड फॉर्म होता है, उस पर अपना निकलने का टाइम लिख कर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और जो काम करना है वो 9 किलोमीटर के अंदर से करके वापस भागना है। और अगर कहीं पे आप चेकिंग होती है तो कागज दिखाते हैं कि आप उसी रूट पे गए हैं कि नहीं। तो वो यही बता रहे थे कि हम अपने बाल बच्चों से भी नहीं मिल पा रहे। वो वैसे वीकेंड्स पे 2 वीकेंड्स पे बाद आते थे, अब बेचारे वो भी 80-80 किलोमीटर दूर रहते हैं। मतलब एक ये पेरिस की एक साइड पे और दूसरी साइड से आगे है, तो वो कहते हैं कि वहां से आने में ही ना हम लोग अब मिल नहीं सक रहे। तो वो स्कूल्स खोलते हैं, लेकिन बाजार, जिंदगी उन्होंने बंद कर दी है। पार्क्स वगैरह बंद है सारे उनके, कोई नानी के घर नहीं जा सकता। हम तो छुट्टी समझ के याशियां कर रहे हैं ना सारे, तो वहां बंद हो गए हैं उन्होंने। और ठीक तरीका यही है कि एजुकेशन को चलने दें, और
बिजनेस को भी चलाने अगर चला सकते हैं तो प्रॉपर थोड़ा सा एहतियात, लोगों को डंडे लगाएं, जूते लगें, सबको बेमकसद कोई ना निकले खामखा। चलो जी, ये बना कि नहीं? तो यस सर। पूरा करा गया सर। बनाओ बनाओ बनाओ, चलो बनाओ बनाओ बनाओ। हो गया सर। चलो शाबाश। अच्छा अब देखो बेटा, यहां तक आकर तो हमें सोल्यूशन मिल गया, और अब हम कोशिश किया करेंगे, आप लोग भी करेंगे, कि अगर आपको लगना शुरू हो कि आपकी कोई एंटिटी क्लास ऐसी बन गई है जिसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट या रिपीटिंग ग्रुप आ रहे हैं, तो आप मल्टी वैल्यूड को अलग कर देंगे, रिपीटिंग ग्रुप को अलग क्लास बनाएंगे। तो लिहाजा ये ख्याल रखिएगा। अब आपने इसको देखना है। और आज का होमवर्क क्या है जरा ये देख लीजिए। नंबर 1, पहला तो वही है जो कि अभी आपको मिल जाएगा। कौन सा वाला? क्लास नोट्स अपलोड। क्लास वर्क। नोट्स पीडीएफ में देने हैं, यस और नो? समझ में आ गया यहाँ पे? यस यस सर। सर। अब देखो 2 क्या है, जरा इसको गौर से देखो, ये एंजॉय करना, इसको, ये मजेदार है। नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, सॉरी। अच्छा ठीक है, आज आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ। अभी जो आपकी क्लास है, जोहर की नमाज पढ़िए, खाना खाइए, और फौरन अपनी क्लास में 1:30 बजे वापस आ जाइए। अपने मतलब क्लास तो नहीं है, लेकिन ये अनसुपरवाइज्ड है, लेकिन आपने बैठ जाना है। आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ। 7 मिनट्स टू मेक अ फॉर्म है, और जो मैंने बनाया हुआ 7 मिनट के अंदर आप सीखते हैं। और फिर शायद 13 मिनट एक और है जिसके अंदर बटन वटन डालते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जो खौफ है, जो परेशानी है कि हमको नहीं होगा, ये आपसे होगा। और मैं इसको चेक करूंगा आज रात को। ये आज के 1.5 घंटे के अंदर, मतलब टाइम तो इसको आधा घंटा भी नहीं लगना, लेकिन 1.5 घंटे में आप ये करेंगे सारा कुछ। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको तुम्हें सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि यार ये कुछ नहीं है। टेबल्स बनाने आसान लगे थे ना? यस सर। सर अब मैं तुमसे बैट लगाता हूँ कि टेबल्स तो मैंने तुम्हें ना स्क्रैच से जीरो से बनाने सिखाए थे। मजे की बात क्या है, फॉर्म जो मैंने पहला लेक्चर है, ये तुम्हें मैंने बहुत सुकून के साथ ऐसे सिखाया है कि तुम लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक उसको विजर्ड को यूज करना है। और विजर्ड जो है ना, वो तुम्हें फिर गाइड करेगा कि तुमने कैसे काम करना है। तो मैं तुम्हें 1 मिनट में इसको दिखाता हूँ, और ये तुम्हारे लिए एंजॉयबल हो जाएगा कि यार ये तो बहुत आसान, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये आ गए। ये देखो, फॉर्म डिजाइनिंग 7 मिनट्स। ये बल्कि मैं तुम्हें अभी, मैंने उन बच्चों ने भी कहा कि इसका हमें ना एक लिंक अभी दे दें। अब आपको कंट्रोल सी, और ये देखिए बेटा, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ। देखो, आप में से हर बच्चा इस तरह का एक छोटा फॉर्म 7 मिनट के अंदर ड्रॉ करेगा, और ये मैं बता रहा हूँ कि हो जाएगा। इसको आपने अपने नोट्स में लिखना